Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to discuss a chapter on main market forms of microeconomics. Okay, and hope if, with this chapter you can easily understand the different forms of market, their characteristics, how they are differentiated with each other, their demand curve, okay, and their most important diagrams. So these are the basic chapters of microeconomics. Okay, and very quickly this is simply theoretical part and few diagrams are there related to the demand curve. Okay, so let's explore this chapter. Okay, and hopefully you like it, so please do like, share and subscribe. Okay, so now first what we should know the meaning of market is what it is a place where the buyers and sellers, not exactly a place, a you can say a whole region where buyers and sellers of commodity are in contact with each other. Okay, and the purchase and sale of the commodity takes place. Okay, now basis of market is what here, that is the market should have a number of buyers and sellers. They should be nature of the commodity, freedom of movement of firms, knowledge of market conditions, mobility of goods and factors of production, right? Now that there are two types of market structure, one is the perfect competition and the other is imperfect competition. Okay, then perfect competition we will just study in detail, but it does not exist in reality. Okay, practically ये आपको नहीं मिलेगा, that is एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी, बट स्टिल इट डज नॉट एग्जिस्ट। आप कहेंगे इस तरह की ज्यादा मार्केट नहीं होती, राइट? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन we experience that is the monopolistic competition and oligopoly. Okay, now we are going to study in detail here the meaning of perfect competition. Now as we know, it is a that this kind of competition never existed, and the example is agricultural goods like wheat and rice. Okay, so first of all, what is perfect competition? It is a market situation where there are large number of buyers and sellers and they are dealing in homogeneous product. Homogeneous means here same product. Okay, सेम प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट वो जो है सेल आउट करते हैं एट प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। मार्केट मींस हियर हियर प्राइस फिक्स कौन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। ये आपने देखा था इक्विलिब्रियम जहां पे होता है, दैट इज द पॉइंट। सो दैट इज गोइंग टू बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, the price is not determined by a particular firm but by the industry. So एक particular firm influence नहीं कर सकती है आपके प्राइस को, ठीक है, अपने प्राइस को, कि नहीं मैं जो प्राइस बोल रहा हूँ वही आपको देना है कंज्यूमर को। नो, बट इट इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई, और बाय द इंडस्ट्री, नॉट बाय अ पर्टिकुलर फर्म। Okay, in reality perfect competition has never existed. Example एग्रीकल्चर गुड्स लाइक व्हीट एंड राइस, तो आपके एग्जांपल्स इसमें पूछे जा सकते हैं, राइट? नाउ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इस बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ बता दिए जाएंगे एंड फीचर्स किसी भी तरह के, ठीक है, एंड देन यू हैव टू tell that what kind of market it is, either it is perfect competition or imperfect है या monopoly है या monopolistic है, depending on the features. Okay, so you should know each and everything in detail. It means the number of sellers is so large that an individual seller cannot influence the market price. Okay, so there are large number of buyers and sellers. A firm is just a price taker. Remember this word price taker is very important. Okay, price taker इसमें आएगा और monopoly में आएगा price maker. Price taker means he has to accept the price from the industry, decided by the industry or the market forces. Okay, ही इज नॉट अ प्राइस मेकर। वो अपने आप से प्राइस कोई भी एडजस्ट कर नहीं सकता, कोई अपने आप से डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कोई अपने आप से वो डिसीजन नहीं ले सकता रिलेटेड टू प्राइस, बट द मार्केट फोर्सेस आर गोइंग टू डिसाइड द प्राइस। दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द मार्केट। ओके, so remember this word price taker, perfect competition, price taker, and has no option to sell the product at the price determined by the industry. A uniform price prevails in the market, यानी कि जितने भी sellers इसमें होंगे, ठीक है, इस तरह की मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट प्राइस। अगर 10 रुपए प्राइस मार्केट में आपको बोल दिया गया है, देन यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट एट 10, वेदर आप जितना भी अमाउंट सेल कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी जितनी भी हो, बट आपका प्राइस वही रहेगा। Got it here? Now, homogeneous का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट। इट मीन्स द प्रोडक्ट सोल्ड इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि वो जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, जो अगर मैं सेल कर रही हूँ और मैं जो हूँ परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रही हूँ एज अ सेलर, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, तो वो भी क्या करेगा, उसी तरह का उसका प्रोडक्ट होगा, सेम साइज, सेम शेप, सेम क्वालिटी, कहीं से कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सो द बायर हैज नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस टू बाय फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर ओनली, क्योंकि उसमें ना प्राइस आप चेंज कर सकते हैं, ना गुड को चेंज कर सकते हैं, ना प्रोडक्ट का कोई साइज, कोई एक्स्ट्रा आप अलग से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इट मीन्स
चाहे मैं इस शॉप से सामान खरीदूं चाहे दूसरी शॉप से सामान खरीदूं, बात तो वही आएगी. सो द सेलर हैज नो स्पेसिफिक रीजन और प्रेफरेंस टू बाय फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर ओनली. देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. अब यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है कि यहाँ पे फ्रीडम है आपका एंट्री करने के लिए भी और एग्जिट करने के लिए फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जब चाहे आप आके एंट्री भी कर सकते हैं और आप एग्जिट भी कर सकते हैं, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. देर आर नो आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर्स टू द इंडस्ट्री टू द एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स. ओके, of the firms. It ensures the absence of abnormal profits. Okay, absence of abnormal profits होते हैं and abnormal losses in the long run. Now first of all freedom of entry हम समझते हैं कि कोई भी आके इंडस्ट्री इसमें एंट्री कर सकती. कैसे कर सकती? इट सिग्निफाइज व्हेन द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट. एक होता है प्रॉफिट जो आप नॉर्मल आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ठीक है, कॉस्ट आपने लगाई, रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, वो एक प्रॉफिट हो गया. अब उससे भी ऊपर अगर आपको मिल रहा है पैसा, ठीक है, द सेम कॉस्ट एट द सेम कॉस्ट, देन व्हाट हैपेंस, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया. तो जैसे ही कंपनीज या फर्म्स यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करती हैं, द न्यू फर्म्स गेट अट्रैक्टेड. जाहिर सी बात है दूसरों लोग को बाहर पता चलता है कि अरे ये जो है यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बहुत अर्न हो रहा है इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने में. सो दे गेट्स अट्रैक्टेड एंड एंटर द इंडस्ट्री. देन व्हाट हैपेंस, अब और भी फर्म्स, हमारी ऑलरेडी 10 फर्म्स थी, अब हमारा प्रॉफिट देके एबनॉर्मल प्रॉफिट देके 5 फर्म्स और अट्रैक्ट हो गई, और एज यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री है तो वो भी एंटर कर गए मार्केट में. अब उनकी वजह से क्या होगा, द मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज विच रिजल्ट्स इन फॉल इन द मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट्स. डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या होगा, जाहिर सी बात है जब सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड जो है आपकी जितनी है, लेकिन क्या होगा, उसके प्राइसेस फॉल करना स्टार्ट कर जाएंगे. ठीक है, द मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगा, जब जो न्यू एंट्री हुई उसकी वजह से सप्लाई आपकी बढ़ गई. ठीक है, प्राइजेस आपके कम हो गए एंड प्रॉफिट्स भी आपके कम हो जाएंगे. द एंट्री कंटिन्यूज अंटिल ईच फर्म इज अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट. और एंट्री तब तक होती रहेगी जब तक कि हर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिले. ठीक है, मिलते रहेंगे बस. देन फ्रीडम टू एग्जिट. ना इसका जस्ट ऑपोजिट है. जैसे ही लॉसेस स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रीज में जितनी एक्स्ट्रा आपकी फर्म्स आई हुई थी वो इसको एग्जिट करना शुरू कर जाएंगी, बिकॉज देर इज नो बैरियर ऑन entry and exit. Okay, so signifies that there are no barriers that restricts the existing firms from leaving the industry, right? And then what happens here, firms leaves when they are facing losses. जैसे ही हमें नुकसान होने लगा हमने उस का प्रोडक्शन या उस चीज को सेल आउट करना छोड़ दिया, एंड व्हेन देन वी लीव द इंडस्ट्री, इट इज द परफेक्ट कंपटीशन. मार्केट सप्लाई फॉल्स लीडिंग टू राइज इन प्राइस एंड रिडक्शन इन लॉसेस. द फर्म कंटिन्यूज टू लीव अंटिल द लॉसेस आर वाइप्ड आउट एंड ईच फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट. यानी कि ये कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही पे आके स्टॉप कर जाएगी. इधर आप जो है एंट्री करेंगे तो जाहिर सी बात है उस वक्त प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, तो फर्म्स अट्रैक्ट होके आएंगी, एंड देन जैसे ही आपके नॉर्मल कंडीशन होने लगेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लगेगा, या लॉसेस में अगर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से वापस चले जाएंगे, उस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे. तो मीन्स कितना है, फर्म्स खाली उतनी ही यहाँ पे रहती हैं जहां तक के वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ना परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स. ना इट्स अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, that is both buyers and sellers are fully informed about the market price, whatever it is prevailing in the market. No firm is in position to charge a different price and no buyer will pay a higher price. As a result, uniform prices prevail in the market. Okay, then perfect mobility of factors of production, that is the factors of production are land, labor, capital and entrepreneur are perfectly mobile. There is no geographical or occupational restriction on their movement. तो रिस्ट्रिक्शन इस पे भी नहीं है. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. Transportation cost क्या, it is assumed that transportation cost is zero. A producer can sell his product at any place and a buyer can buy from the place he likes. Okay, तो यहाँ पे भी transportation cost zero हो जाती है. Absence of selling cost, यहाँ पे कोई भी आपके advertisement नहीं होता है, because if anybody is going to advertise his product or his shop or मार्केट, तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली सभी के लिए बेनिफिट होगा. सो बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस इन नेचर एंड देयर इज परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स. नाउ वी विल जस्ट गेट टू द पॉइंट, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके वन वर्ड एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट, इट रिफर्स टू द मिनिमम प्रॉफिट विच आर नीडेड टू कैरी आउट द बिजनेस. एक नॉर्मल प्रॉफिट एक होना चाहिए ना बिजनेस में, तभी तो आप उस बिजनेस में स्टिक रहेंगे, अदरवाइज यू विल क्विट दैट. ओके, the total production cost of a firm include the normal profit, right?
देन एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल से अबव. दैट मीन्स इट रिफर्स टू एक्सेस अर्निंग ओवर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. एंड एबनॉर्मल लॉसेस, लॉसेस जो हो रहे थे उससे भी ज्यादा लॉस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं हम. इट रिफर्स टू द शॉर्टेज ऑफ अर्निंग ओवर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, राइट. ना प्योर कंपटीशन, एक कहीं पे आप वर्ड सुन सकते हैं, एंड परफेक्ट कंपटीशन, इसमें बस स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस है. दैट इज प्योर कंपटीशन इज व्हाट? इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट व्हेन फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल. इसमें सिर्फ तीन फंडामेंटल कंडीशंस होनी चाहिए प्योर कंपटीशन में: लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जो हमने शुरू में पढ़ा था, राइट. बट इन परफेक्ट कंपटीशन उसमें क्या होना चाहिए? ये तो साथ में है ही फीचर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, perfect knowledge among buyers and sellers, perfect mobility of factors of production, absence of transportation cost, and absence of selling cost. It should be included all. Okay, यानी कि टोटल इसमें 7 के फीचर्स हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन में. प्योर कंपटीशन ओनली 3 आर देयर. ओके, ना फर्म इज अ प्राइस टेकर, जो मैंने आपको बताया था, ये अक्सर जो होता है इसको डिफाइन करने के लिए भी पूछा जा सकता है. देन हाउ यू गोइंग टू राइट द आंसर, that is going to be there. It means that an individual firm cannot influence the price on its own, as its share in total market supply is negligible, because there are large number of buy and sellers, right, and selling the homogeneous product. तो आपको यही language ही लिखना है to score good. Okay, full. Then firm plays no role in price determination, because the price is determined by the market forces or by the industry. Got it? Each firm has to accept the price determined by market forces of demand and supply. Price is determined at the point where market demand curve intersect market supply curve. Now you can see here the demand curve is sloping, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ई, एंड ये जो प्राइस यहाँ पे आएगा दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. और यहाँ पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. वी हैव ऑलरेडी रेड ऑल दीज थिंग्स, तो आपको याद होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द डी डी कर्व इंटरसेक्ट एस एस कर्व एट पॉइंट ई. AR curve is perfectly elastic and parallel to x axis. अब देखिए फर्म का जो क्या है, ये आपका प्राइस टेकर है. ओके, इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर है इसमें, और फर्म क्या है? प्राइस टेकर है. बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू मेक दिस डायग्राम हियर, तो यहाँ पे क्या है? प्राइस कांस्टेंट है. देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो भी मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड कर दिया, इट इज गोइंग टू प्रिवेल इन द होल मार्केट इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. गॉट इट हियर? तो यहाँ पे क्या होगा? AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस. जो हमने क्वेश्चंस करे थे, ये वही चीज आपको याद आ जाएगी. ठीक है, रेवेन्यू वाले में AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस, जो अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके क्वेश्चंस कराए हैं प्रैक्टिकल. ओके, तो क्वांटिटी चाहे आप कुछ भी कर लो, बढ़ाएं घटाएं, ठीक है, जितनी भी आप कर लें, बट प्राइस विल रिमेन द सेम. तो दैट्स व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल parallel to x axis. Okay, now AR curve is perfectly elastic and parallel to x axis. AR is constant, that is MR is equals to AR. AR curve is also the MR curve of the firm. Got it here? I hope no problem, no issue. Now, demand curve under perfect competition, as I've already just explained you the way that how the this one, that is the price is determined by the market forces, और इसीलिए आपकी prices जो होती हैं वो still रहती हैं parallel to x axis, horizontal parallel to x axis, यही आप लिखेंगे. ठीक है, under perfect competition there are large number of buyers and sellers selling homogeneous product at fixed price. Each firm is a price taker and faces a perfectly elastic demand curve, that is horizontal straight line parallel to x. Is very important this paragraph, everything is there. Okay, यही आप अगर sentences और यही आप keywords use करेंगे, then you're going to score full. Okay, each firm has to accept the price fixed by the industry and the firm cannot change the price. That's why it's a प्राइस टेकर. अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, देन दिस इज द आंसर. नाउ एक्सप्लेनेशन, अब इसको एक्सप्लेन भी करना जरूरी है. दैट इज आउटपुट इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, आउटपुट यू कैन सी, एंड हियर the revenue or price on the y-axis. Then AR and MR curve are the one and the same thing. तो आप कह सकते हैं AR, MR और price same thing. Okay, MR is equals to AR under perfect competition. Yes, we can see here एक ही line बनी हुई है. Each firm is a price taker. We know this very well. All the firm has to accept the price determined by the market forces of demand and supply. Then uniform price prevails in the market. It means here MR जो होता क्या? Additional revenue is equals to average revenue or price of the product. So AR is equals to MR, या MR is equals to AR. Okay, now in the next video we are going to cover this topic, monopoly. Hope you understand it very well. Okay, any queries you may just ask in the comment section, and thank you for watching.